کبھی انسان کے ساتھ ایسے پراسرار واقعات پیش آ جاتے ہیں جنہیں وہ بھلائے نہیں بھول پاتے۔ آج کی اس کہانی میں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ جو ہمارے لسنر مصطفیٰ کے ساتھ پیش آیا، ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ دوستو، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ایسے ہی پراسرار کہانیاں آگے بھی سنتے رہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم آج کے واقعے کی طرف اور مصطفیٰ کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام مصطفیٰ احمد ہے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ میرا چمڑے کا کاروبار ہے اور کام کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ مجھے اکثر پاکستان کے مختلف علاقوں میں کام کے سلسلے سے جانا پڑتا ہے۔ میرے بچپن کا ایک دوست حامد، جو میرا بزنس پارٹنر بھی تھا، وہ بھی اکثر کاروبار سے منسلک سفر میں میرے ساتھ ہوتا تھا۔ سردیوں میں ہمارا کام کافی زیادہ بڑھ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے کام کا لوڈ بھی ہم دونوں پہ کافی آ جاتا تھا۔ ایک شام ایسے ہی ہمیں کسی کام کے لیے فوری طور پہ امیر آباد جانا تھا۔ امیر آباد ایک گاؤں تھا جو ایبٹ آباد سے تقریباً 28 کلومیٹر کی دوری پہ واقع تھا، لیکن اس وقت ہمیں لاہور سے امیر آباد جانا تھا جو کہ تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر تھا، اور بائی روڈ اس سفر کو مکمل کرنے میں تقریباً 6 سے 7 گھنٹے درکار تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ 2010 کے نومبر کی بات ہے۔ ان دنوں کافی کڑاکے کی سردیاں پڑی تھیں۔ میں اور حامد لاہور سے اپنی گاڑی میں امیر آباد کی طرف رات کے کچھ 1 بجے یہ سوچ کر نکل پڑے کہ صبح ہوتے ہی ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہوں گے اور اپنا کام مکمل کر کے واپس لاہور اسی دن آ جائیں گے۔ اس سے ہمارا وقت بھی زیر استعمال آ جائے گا اور ہمارا لوڈ تھوڑا کم بھی ہو جائے گا۔ اس وقت ہم اتنی جلدی میں تھے کہ ہم نے اپنے ساتھ کھانے پینے کا کوئی سامان بھی نہیں رکھا تھا، البتہ کچھ اور مزید گرم کپڑے ساتھ رکھے تھے، کیونکہ جہاں ہماری منزل تھی وہاں مزید سردی پڑ رہی تھی۔ خیر، ہم اپنے سفر پر رواں دواں تھے۔ اس رات سڑکیں غیر معمولی طور پہ کافی سنسان نظر آ رہی تھیں۔ اکا دکا گاڑیاں بھی سڑک پہ نہیں دکھ رہی تھیں۔ شاید اس کی وجہ یہ انتہا کی سردی اور ہڈیاں جما دینے والی ٹھنڈی ہوائیں تھیں جو سائیں سائیں چل رہی تھیں۔ ان ہواؤں کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے ہم نے اپنی گاڑی کے شیشے تک چڑھائے ہوئے تھے۔ خیر، ہم دونوں نے سفر میں لائٹ سا میوزک لگا لیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس سے ہم سفر میں بور نہیں ہوں گے اور وقت بھی جلدی گزر جائے گا۔ خیر، اسی طرح چند اور گھنٹے گزر گئے۔ اس وقت رات کے کچھ 3 یا 3:30 بجے ہوں گے کہ اچانک حامد کی طبیعت ایک دم خراب ہونے لگی۔ اس وقت میں ڈرائیو کر رہا تھا اور میرے برابر والی سیٹ پہ حامد بیٹھا تھا۔ اس کا سر ایک دم گھومنے لگا، بے چینی سی ہونے لگی۔ بلال، یقین کریں اس شدید ٹھنڈ کے موسم میں بھی حامد کو اس وقت حیران کن طور پہ پسینے آ رہے تھے۔ میں اس کی یہ حالت اچانک دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو حامد بالکل ٹھیک تھا، اب اسے یہ اچانک کیا ہو گیا؟ خیر، میں نے اسے تسلی دی اور اپنے دائیں بائیں کوئی مناسب جگہ دیکھ کر گاڑی روکنے کا سوچا، لیکن رات کے اس پہر اس روڈ پہ ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں اور اندھیرے میں ڈوبی پہاڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں، جنہیں اس وقت دیکھ کے خوف اور ڈر طاری ہو رہا تھا۔ چند منٹس مزید اس روڈ پہ آگے جانے پہ ایک کچی سڑک دکھائی دی۔ میں نے جب اس سڑک پہ جانے کے لیے گاڑی کو موڑا اور اس سڑک پہ جانے لگا تو میں نے اس سڑک کے بالکل الٹے ہاتھ پہ ایک راستہ جاتے دیکھا۔ وہ راستہ کافی کچا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی بناوٹ سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں۔
मैंने सोचा कि शायद ये किसी गांव का रास्ता होगा और मैंने गाड़ी उसी सड़क पे ले ली। लेकिन चूंकि वो सड़क काफी छोटी और न ही इतनी हमवार थी कि मजीद हम वहां से गाड़ी आगे ले जा सकें, तो हमने गाड़ी एक कोने में लगे पेड़ के नीचे पार्क की और गाड़ी से उतर गए। उस वक्त काफी ठंड थी, लेकिन हामिद को उस वक्त भी पसीने छूट रहे थे। ये देख के मैंने सोचा कि इसकी तबीयत वाकई खराब है और इसे आराम की जरूरत है। अगर आगे ठहरने का कोई मुनासिब मकाम दिखा तो वहां मैं हामिद को थोड़ी देर रेस्ट करवा दूंगा। लेकिन जब हम उस जगह, आप उसे गांव कह लें या कोई बस्ती कह लें, वो जो कुछ भी था, वहां हमें न कोई घर दिखा और न ही कोई ऐसी जगह जहां हम कुछ देर ठहर सकें। हम दोनों वहां से मायूस होके वापसी अपनी गाड़ी की जानिब पलटने लगे तो मुझे वहां पेड़ के पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई हमें उस तरफ बुला रहा हो। खैर, जब हमने ठीक तरह वहां देखा तो हमें वहां खिलाफे तवक्को एक पुरानी टूटी फूटी सी झोपड़ी दिखाई दी। मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में हामिद को आराम करवा देता हूं, और वैसे भी ठंड की वजह से फॉग भी काफी है, जिसकी वजह से ड्राइविंग में भी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। लिहाजा यहां थोड़ा वक्त गुजार के फजर होते ही हम यहां से रवाना हो जाएंगे। और ये सोच के हम दोनों उस झोपड़ी की तरफ बढ़े और उसके दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन वहां कोई नहीं आया। उस झोपड़ी को बाहर से देख के ऐसा मालूम हो रहा था कि अंदर बिल्कुल अंधेरा है। खैर, जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो हम दोनों उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होने के बाद हमने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन की और अंदर का जायजा लेने लगे। बताते हैं कि उस झोपड़ी के अंदर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे थे। कोने पे पड़ी एक टूटी हुई कुर्सी थी जिस पे काफी मिट्टी लगी थी, लेकिन हैरान कुन तौर पे वहां एक छोटी पुरानी चारपाई थी जो दिखने में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देख के लग रहा था कि इस पे कोई सोता हो। मुझे लगा कि फिलहाल यहां कोई मौजूद तो है नहीं, और ऊपर से हामिद की भी तबीयत काफी खराब लग रही है, तो उस वक्त हालात के पेश नजर हमने वहां ठहरना ही बेहतर समझा। मैंने हामिद को साथ पड़ी उस चारपाई पे लिटा दिया और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया, और मैं उस झोपड़ी की एक छोटी सी खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगा। उस वक्त उस गांव में बिल्कुल खामोशी थी, आसपास कोई नहीं था, हर तरफ अंधेरा और बस अंधेरा ही था। कभी हवा तेज चलती तो जमीन पे पड़े पत्तों की आवाज आने लगती। गर्ज ये कि उस वक्त उस अंधेरे में वो जगह एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। अभी मैं इस खामोशी में ये सब देख ही रहा था कि अचानक उस झोपड़ी की छत पे कोई चीज आके गिरी। मुझे लगा कि शायद कोई बिल्ली या दूसरा जानवर हो। मैंने ये सोच के इस बात को नजरअंदाज कर दिया और आके हामिद के पास उस चारपाई पे बैठ गया। अभी इस बात को 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे कि बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी आंख खुली तो मेरी नजर उस कुर्सी पे पड़ी जो उस झोपड़ी के बिल्कुल कोने पे पड़ी थी, और अब उसकी सिमत बिल्कुल मेरे सामने थी। ये देख के मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि मेरी आंख झपने से पहले वो कुर्सी मेरे बिल्कुल पीछे थी और अब वो बिल्कुल मेरे सामने पड़ी थी। ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि अगर वहां कोई आता भी तो हमें उठा के हमसे हमारे बारे में पूछता, और अगर पूछता भी नहीं तो हमें उसकी या फिर उस कुर्सी की मूवमेंट की आहट तो होती ही। खैर, मैं अभी यही सोच ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस झोपड़ी की छत पे कोई मौजूद है। कहते हैं कि उस वक्त मुझे बाकायदा किसी की आहट और एग्जिस्टेंस महसूस होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है।
अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक किसी ने उस झोपड़ी के दरवाजे पे दस्तक देना शुरू कर दी। मैं बिल्कुल चौंक गया कि ये कौन हो सकता है, लेकिन ये सोच के कि कोई यहाँ का ही रहायशी होगा, दरवाज़ा खोलने चला गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं देखा, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। तो मैं वापस अंदर आ गया। इन सब सिनेरियोज में हामिद बेखबर ही सो रहा था और मैंने उसे उस वक्त जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैं उस वक्त खुद भी थोड़ी थकावट महसूस कर रहा था, तो मैं भी दोबारा हामिद की चारपाई पे ही बैठ गया। इस बार फिर बिल्कुल खामोशी छा गई थी कि कुछ वक्त और गुजरने पे एक बार फिर उस दरवाजे पे नॉकिंग होना स्टार्ट हो गई। मैं उठा, बाहर देखा, लेकिन फिर से कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने सोचा कि मैं झोपड़ी से निकलकर थोड़े आगे पीछे जाकर जायजा तो लूं कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं बाहर निकला और थोड़े आगे निकलकर जायजा लेने लग गया। उस वक्त रात के कुछ 4:30 बज रहे थे। मैं थोड़े ही आगे गया तो मुझे एक इंतहाई ज़ईफ बुढ़िया जो बिल्कुल झुकी हुई थी, हाथ में लाठी लेकर गांव की दूसरी तरफ चले जा रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद ये इस बुढ़िया की शरारत होगी, लेकिन उसकी रफ्तार को देखकर मैंने सोचा कि इससे तो खुद चला नहीं जा रहा, ये दरवाजे पे दस्तक दे के फौरन कैसे गायब हो सकती है। अभी मैं ये सोच ही रहा था और जब एक बार फिर मेरी नज़र उस बुढ़िया की तरफ पड़ी तो वो बुढ़िया वहां से गायब हो चुकी थी। मैं बिल्कुल हैरान और परेशान रह गया कि मैंने अभी तो यहाँ एक बुढ़िया को देखा था, वो अचानक कैसे कहीं गायब हो सकती है। खैर, इन सब मामलात के होने पे मुझे ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि इस जगह और स्पेसिफिकली इस झोपड़ी में कुछ तो गड़बड़ है। उस वक्त मुझे फौरन हामिद का ख्याल आया कि मैं उसे अकेला सोता छोड़ आया हूं। मैं वहां से जैसे ही वापसी जाने के लिए मुड़ा तो मुझे मेरे पीछे एक काले रंग का खौफनाक चेहरा दिखाई दिया। उस वक्त उस चेहरे को देख के मेरी चीखें निकल गईं। मैं उल्टे पैर वहां से डर से भागता हुआ उस झोपड़ी के पास जाने लगा, लेकिन उस वक्त उस जगह मुझे वहां वो झोपड़ी दिखाई ही नहीं दी। अब अल्लाह आलम कि मैं वो जगह अंधेरे में भूल गया था या वहां कुछ और ही माजरा था, लेकिन मैंने तकरीबन आधे घंटे उस गांव के अतराफ में उस झोपड़ी को सर्द रात की तारीखी में काफ़ी ढूंढा, लेकिन वो झोपड़ी मुझे नहीं मिली। मुझे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त हामिद की फिक्र हो रही थी कि वो कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। मैं कभी इधर भागता तो कभी उधर जाता कि शायद मुझे वो झोपड़ी दिख जाए, लेकिन मुझे वो झोपड़ी तो नहीं दिखी। मगर थोड़ी दूर जहां हमने अपनी गाड़ी एक पेड़ के नीचे पार्क की थी, वहां मुझे गाड़ी के पास हामिद खड़ा नजर आया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे कहा कि मुस्तफ़ा, तुम कहाँ रह गए थे। मुझे उस वक्त थोड़ा ताजुब हुआ और मैंने उससे पूछा कि हामिद, तुम तो उस झोपड़ी में सो रहे थे ना, फिर यहाँ कैसे। तो उसने कहा कि हाँ, मैं तो सो रहा था, लेकिन तुमने ही मुझे उठाकर कहा कि हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। तुम हमारा सामान उठा के गाड़ी की तरफ आओ और मैं जब तक गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, और जब से मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। उसकी ये बात सुन के मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मेरे दिमाग में मुख्तलिफ तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैंने तो इसे उठाया ही नहीं और ना ही इसे गाड़ी की तरफ आने को कहा। मैं तो उस वक्त इसके साथ भी नहीं था, तो फिर वो जो मेरी शक्ल में इसके साथ था वो कौन था। खैर, मैंने उस वक्त हामिद से किसी बात का तस्करा नहीं किया। हमने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकलते बने। हमारे वहां से निकलते निकलते फजर का वक्त हो चुका था।
आहिस्ता आहिस्ता रोशनी भी पड़ना शुरू हो गई थी। चंद घंटों के बाद हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। वहां से काम निपटा कर जब हम वापसी घर को आए तो मैंने मौका देख के हामिद को उस रात के बारे में बताया और वो बात भी बताई कि उस वक्त मैंने तुम्हें नहीं उठाया था, मैं तो उस वक्त खुद बाहर था। जिस पे हामिद को शुरू में तो इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आया, लेकिन मेरे काफ़ी बार यकीन दिलाने के बाद उसे भी इस बात पे काफ़ी ताजुब और हैरानी हुई। बिलाल, वो झोपड़ी, वो बुढ़िया, वो काला चेहरा और मेरी शक्ल में वो जो कोई भी मखलूक थी, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं कि वो सब क्या था, कौन थे। लेकिन मुझे इतना पता था कि उस झोपड़ी में वो जो कोई भी मखलूक रहती थी, उसे हमारा वहां रात का कुछ वक्त गुजारना गैर मुनासिब लगा था और शायद इसीलिए वो मखलूक हमें कोई इंडिकेशन, कोई इशारा दे रही थी। सो दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हमें मुस्तफ़ा ने लाहौर से भेजी थी। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ दोबारा पेश हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।